In the previous video, we have studied about how to sign in an Gmail account or email account. We have signed in, and then after we learn about how to send an email. After that, attaching file. So I'm showing you the two ways: the sending an email and attaching a file. Right? Practically, we are going to implement this. Students, you have to implement this at your home also if you have a mail ID. Right? So now start it with our computer. Here I have signed in my email account. These emails are in inbox that I have received from different senders, right? And on the left side I have some options for my inbox, start message, and this. And the very first option, that is compose. This option is used to send an email, right? The first option, that is compose. So I'm going to click on here compose option, and I click here. A new window open here. For the new message, you have seen the very first heading, that is to. In this you have to write the recipient's address to whom you want to send the email. After that, if your email have any subject, then you have to put it here after the subject. Then after, you can write the body part of your email, and the last option is send. So here I'm going to write the email address to whom you want to send the email. I have written this. After that, the second thing is subject. If I have any subject, I can write on subject. If I want to add the subject in this email, I can add it in the subject option, that is regarding the students study material, right? I have make a subject this. Then after, if I want to add in the body part, I can add it here, anything you can add it here. Then in the last we have option send. If I want to send only the text message, I click here send, and this mail goes on, right? But if I want to attach any file, right, अगर मुझे इसमें कोई attachment attach करनी है, then I want to show you the option, the second one option, that is this, right? This option is for attachment of file. I click on here, it will open a browse list कि मुझे जो फाइल अटैच करनी है ब्राउज करना पड़ेगा मुझे यहाँ से. लेट अस सी दैट जो मुझे फाइल अटैच करनी है वो मेरी डेस्कटॉप पे है. तो मैं इधर से बच्चे डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगी. डेस्कटॉप पे मेरी जो भी फाइल है मुझे सेंड करनी है, मैं उस फाइल पे क्लिक करूँगी, राइट? और वो फाइल मेरी यहाँ पर अटैच होना स्टार्ट हो जाएगी. अभी ये ऑन द वे है प्रोसेस में. अभी ये मेरी फाइल अटैच हो चुकी है टोटली. अगर बाय मिस्टेक ये फाइल गलती से ऐड हो गई, मुझे इस फाइल को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस का जो साइन, इस पर क्लिक करके इस फाइल को हटा भी सकती हूँ, वरना मैं इसको कंटिन्यू अगर मुझे करना है तो मैं इसको रहने दूंगी. देन आफ्टर इफ आई विल सेंड, क्लिक ऑन द सेंड ऑप्शन, तो ये सेंड हो जाएगी, राइट? मीन्स चली जाएगी जो भी मेरा रेसिपिएंट है उस रेसिपिएंट के पास. ठीक है. नाउ ये था आपका हाउ टू सेंड एन ईमेल एंड हाउ वी कैन अटैच अ फाइल. द नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग एन ईमेल. रीड एन ईमेल्स मीन्स कि जो भी हमारे इनबॉक्स में कोई मेल आई हुई है, एनी रेसिपिएंट हैव सेंड मी एन ईमेल एंड आई वांट टू रीड इट, राइट? तो मैं इसको रीड कैसे करूँगी, मेरे को वो बताना है कि अगर मुझे कोई फाइल है वो रीड करनी है तो हम कैसे रीड करेंगे. द वेरी ईजियर पार्ट इज दैट आई विल गो ऑन इनबॉक्स. मैं इनबॉक्स ऑप्शन में जाऊँगी. जो भी मेरा इनबॉक्स ऑप्शन है ईमेल ओपन करने के बाद, इनबॉक्स ऑप्शन में जाने के बाद जो भी मेरे पास ईमेल आई है, मैं उस ईमेल के ऊपर क्लिक करूँगी, जो वो मेल है वो ओपन हो जाएगी एंड आई कैन रीड इट ईजिली. इफ़ वो टेक्स्ट ईमेल है तो मुझे टेक्स्ट में सारा शो हो जाएगा. लेकिन इफ़ दैट ईमेल कंटेन एनी अटैचमेंट, अगर उस ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट है तो मैं वो भी रीड कर सकती हूँ, मैं उस अटैचमेंट पे क्लिक करके.
पढ़ भी सकती हूँ और मैं चाहूँ तो मैं उसको अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर डाउनलोड भी कर सकती हूँ। दैट इज़ डाउनलोडिंग एन अटैचमेंट, कि मैं वो अटैचमेंट कैसे डाउनलोड कर सकती हूँ। सो आई एम गोइंग टू शो यू how I can read an email and how can I download an attachment, right? So we will see it practically. Look at here, these are my some email messages जो मेरे पास इनबॉक्स में आए हुए। मैं इनमें से कोई भी अगर ईमेल मैसेज ओपन करती हूँ तो वो आप ओपन करके देख सकते हैं। सो I am opening one of email for you, that is I am going to opening this. If I open this mail, so in this mail I have an attachment. You are seeing this is an अटैचमेंट। मुझे जैसे ही मैं इस अटैचमेंट पे अपना माउस की कर्सर से लेके आते तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ डाउनलोड ऑप्शन, कि जो ये अटैचमेंट है ये मेरे पीसी या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए। ये ड्राइव में सेव करने के लिए है। और उस ये जो लास्ट ऑप्शन है कि जो अटैचमेंट है मैं उसको यहीं की यहीं पे एडिटिंग कर सकती हूँ। मीन्स अगर मुझे उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ और लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओनली हेयर। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो जो भी ये डाउनलोड ये अटैचमेंट फाइल है मेरी, वो फाइल ओपन हो जाएगी और मैं इस फाइल को यहाँ से सिर्फ देख सकती हूँ। इफ़ आई क्लिक ऑन द अटैचमेंट, मैंने डाउनलोड पे क्लिक नहीं किया है, सिर्फ अटैचमेंट फाइल पे बस सिंपली क्लिक किया था, राइट। बच्चे ये सिर्फ मेरे को यहाँ पर ईमेल आईडी में बस ये शो करा रहा है। मुझे मान लीजिए इस फाइल को अपने पीसी में डाउनलोड करना है तो मैं वेरी फर्स्ट जो ऑप्शन मेरे पास आया था मैं इस पर क्लिक करती हूँ और ये जो फाइल है बच्चे ये मेरी यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। ये फाइल मेरे पीसी में अब डाउनलोड हो चुकी है। देखिए लास्ट में यहाँ पे नीचे शो हो रही है पावर प्रोजेक्ट फाइल से डॉक की फाइल है और ये मेरे पीसी में डाउनलोड हो चुके हैं। तो इस तरीके से मेरे इनबॉक्स में कोई भी मेल मैसेज आता है मैं उसको चेक कर सकती हूँ और मैं उसको रीड भी कर सकती हूँ। रीड करने के बाद अगर उसमें कोई अटैचमेंट है तो मैं उस फाइल को अपने पीसी में अटैच भी कर सकती हूँ, राइट। तो ये दो वेज और थे जो हमने अभी पढ़ने थे। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज रिप्लाई, कि हाउ आई कैन रिप्लाई द ईमेल दैट कम्स इन माई इनबॉक्स, लाइक दैट कि कोई ईमेल मेरे पास आई है, किसी ने मुझे कोई ईमेल सेंड किया है तो मुझे उस ईमेल का रिप्लाई करना है तो मैं उस मेल का रिप्लाई कैसे कर सकती हूँ, राइट। तो दैट इज़ मुझे उसमें रिप्लाई ऑप्शन पे जाना होगा और मुझे वो रिप्लाई करना है, राइट। अगर हम अभी देखते हैं तो अभी मैंने आपको एक मेल ओपन करके दिखाई थी और हम उसके अकॉर्डिंग ही सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो यहाँ पर मैं कोई भी फाइल ओपन करती हूँ, लाइक दैट अगर हम फाइल ओपन कर रहे हैं बच्चे तो इस तरीके से है। ये फाइल मैंने कोई फाइल ओपन की है, मेरे पास एक मेल आई हुई है, मैंने इस मेल को ओपन किया है। देन यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, वन ऑप्शन इज़ रिप्लाई। ये देखिए मैंने इस फाइल को ओपन किया है, इस फाइल में कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, बस एक अटैचमेंट आई हुई है। अटैचमेंट मैंने आपको डाउनलोड करना बता दिया है। देन आफ्टर यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन और है, वन इज़ रिप्लाई एंड द सेकेंड वन इज़ फॉरवर्ड। इन रिप्लाई ऑप्शन बच्चे अगर मैं रिप्लाई करती हूँ, जिस भी सेंडर ने मुझे ये मेल भेजी है मैं जो रिप्लाई करूँगी वो बैक टू बैक उनको रिप्लाई हो जाएगा। फॉरवर्ड में क्या होगा, जो भी सेंडर ने मुझे ये मेल भेजी है बच्चे, जो अटैचमेंट है सेंडर के एड्रेस के साथ ये अटैचमेंट मेरे थ्रू किसी और के पास फॉरवर्ड हो जाएगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे एक नया बॉक्स ओपन होकर आता है। ये सेंडर है जिसने मुझे ईमेल भेजी थी और मुझे यहाँ पे जो भी रिप्लाई लिखना है मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। कोई फाइल अटैच करनी है मैं फाइल अटैच कर सकती हूँ और मैं इसको सेंड भी कर सकती हूँ, राइट। द वेरी लास्ट ऑप्शन जो हमारा आज के टॉपिक में था दैट इज साइन आउट, कि हम साइन आउट कैसे करते हैं। तो साइन आउट करने के लिए बच्चे हमें बिल्कुल राइट कॉर्नर पे जाना होगा। राइट कॉर्नर के ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन होगा दैट इज़ दिस। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से नीचे जो ऑप्शन आता है दैट इज़ साइन आउट, और मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये जो मैंने ईमेल ओपन की हुई थी जीमेल पे और ये मेरी साइन आउट हो जाती है, राइट। सो हम जब भी ईमेल ओपन करते हैं, मैंने आपको एक सबसे पहला पॉइंट फर्स्ट और लास्ट जो भी नेसेसरी थिंग थी वो यही थी कि हम कहीं पर भी
अगर अपनी ईमेल आईडी ओपन करते हैं बच्चे तो वी शुड साइन आउट इट फर्स्ट, हमें उसको साइन आउट करना चाहिए। अगर हमारे मोबाइल फ़ोन पे, हमारे पर्सनल लैपटॉप पे है देन नो इशू, बट इफ़ अगर हमारे पर्सनल लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन को छोड़ के हमने कहीं पर भी अपनी आईडी लॉगिन की है, आइदर इट इज़ इन साइबर कैफ़े, स्कूल, कॉलेजेस, फ्रेंड्स मोबाइल, एनीवेयर अगर हमने साइन इन किया है तो हमें उसको साइन आउट करना चाहिए, राइट। अब जब भी हम ईमेल यूज़ करते हैं बच्चे तो हमारे पास कुछ टिप्स होते हैं कि हम ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो हमें हमारी ईमेल आईडी कैसे यूज़ करनी चाहिए सेफली। तो हेयर आर सम टिप्स फॉर ईमेल, राइट। अगर हम बच्चे बात करते हैं तो सबसे पहली ट्रिक तो यही है हमारी कि दैट वी शुड नॉट शेयर आवर ईमेल आईडी पासवर्ड टू एनीवन, कि हमें हमारे ईमेल आईडी का पासवर्ड कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। पासवर्ड के साथ साथ बच्चे कभी भी हमें हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स, एटीएम पिन, ये कुछ छोटी छोटी ऐसी पर्सनल चीज़ें जो कि हमें ईमेल आईडी के थ्रू कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए, राइट। दे मे बी मिसयूज्ड इफ समवन हैक्ड इट, राइट। देन द सेकंड इज डू नॉट रिप्लाई टू स्पैम मैसेजेस। हमारी ईमेल के अंदर बच्चे एक ऑप्शन होता है दैट इज स्पैम मैसेजेस, जिससे वो क्या है कि हमारा जो ईमेल अकाउंट है वो काफ़ी बार जो अनऑथराइज्ड सेंडर्स होते हैं या कोई फेक मैसेजेस होते हैं या कोई वायरस कंटेमिनेटेड मैसेज होते हैं उसको स्पैम मैसेजेस में डाल के स्टोर कर देता है। तो हमें स्पैम मैसेजेस को हम पढ़ सकते हैं बट कभी भी हमें उनको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। देन आफ्टर डू नॉट ओपन अटैचमेंट, ये नहीं कह रहा, अब ये पॉइंट पूरा नहीं है, इस पॉइंट को मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। डू नॉट ओपन अटैचमेंट फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड सेंडर, मीन्स कोई ऐसा सेंडर है जिसको हम जानते नहीं हैं और कोई अननेसेसरी या फिर हमारे काम की नहीं है मेल, हमने देखा अजीब सी मेल है हमें समझ नहीं आ रहा, तो उस टाइप के मैसेजेस के अटैचमेंट को हमें ओपन नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार हमें ट्रैप में फंसाने के लिए बच्चे हमारे पास बहुत सी मेल आती है दैट यू विन a lottery amount of this much click on the link and fill your details। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, तो कभी भी हमें उन अटैचमेंट्स को ओपन नहीं करना चाहिए। द लास्ट पॉइंट इज डैट हम मेल भेजते हैं, एडवांटेज में हमने ये पढ़ा था कि हम एक ईमेल को नंबर ऑफ़ पीपल्स को सेंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर है कि अगर हम कोई ग्रुप में जैसे नंबर ऑफ़ पीपल्स को हम कोई एक ही मेल सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होता है 2, बच्चे 2 की जगह जो ऑप्शन है हम उस 2 को यूज़ ना करते हुए हमारे पास एक ऑप्शन और होता है दैट इज़ BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, राइट। हम इस ऑप्शन के अंदर जाके हम सारे रेसिपिएंट्स की आईडी डाल के तब हम सेंड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सबकी आइडेंटिटी हमारी छुपी रहती है और उनकी ईमेल आईडी भी सेफ रहती है, राइट। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अब आप ये 2CC BCC मुझसे पूछोगे तो बच्चे ये होता है जब भी हम आईडी मेल सेंड करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है 2 जिसमें हम अपने रेसिपिएंट्स की ईमेल एड्रेस लिखते हैं। उसी के पीछे हमारे पास 2 ऑप्शन और होते हैं CC एंड BCC। CC इज़ कार्बन कॉपी, अगर हमें ये और भी बहुत सारे बंदों को भेजनी है और भी बहुत सारे रेसिपिएंट्स को भेजनी है तो हम CC का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये 5 पर्सन्स को भेजी है तो जो भी मैं 5 पर्सन्स के ईमेल एड्रेस में CC में डालूंगी दे कैन सी, मान लीजिए कोई भी 4 पर्सन है, 1 2 3 4 एंड 5 पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है वो बाकी 4 पर्सन्स की ईमेल आईडी देख सकते हैं कि कौन कौन सी ईमेल आईडी पे मैंने भेजा है। ओपन नहीं कर सकता, हम ईमेल आईडी देख सकते हैं, राइट। उसको पता होगा कि मैंने इस पर्सन को भेजा है, इस पर्सन इस ईमेल आईडी वाले पर्सन को भेजा है, इसको भी भेजा है, इसको भी भेजा है, सेकंड को भी पता होगा, बाकी के 4, थर्ड को भी पता होगा, मीन्स दे नो ईच अदर ईमेल आईडी। पता होगा कि मैम ने ये या सर ने या जो भी बंदा है उसने ये आईडी ये मैसेज और भी लोगों को भेजा है। BCC जो ऑप्शन होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मान लीजिए आपने 5 लोगों के नाम लिखे हैं, राइट। मान ली 5 लोगों में कोई भी पर्सन है, राम, दिनेश, सौरभ, मान लीजिए 3 है, राइट। वी हैव 3 पर्सन, 3 पर्सन्स हैं जिनके हमें ये एक मेल भेजी है BCC में। तो राम
एज्यूम दैट कि मैम ने ये मेल सिर्फ मुझे भेजी, उसको बाकी 2 की ईमेल आईडी नहीं दिखाई देगी। सेम दिनेश के साथ होगा, दिनेश को लगेगा कि ये मेल सिर्फ उसी के पास आई और किसी के पास नहीं गई। सेम हैपन विद सौरभ। सो इन दिस वे BCC वर्क। तो जब भी हम ग्रुप में भेजते हैं और ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हो तो हमें BCC का ऑप्शन यूज़ करना चाहिए टू प्रोटेक्ट एवरीवन आइडेंटिटी, राइट। तो दिस इज़ आवर ईमेल टॉपिक एंड इट इज़ फिनिश्ड हेयर, राइट। एक बच्चे की क्वेरी थी कि PDF नोट्स, आई थिंक इट इज़ दीप्ति, राइट, कि मैम PDF नोट्स मुझे नहीं मिल रहे स्कूल की वेबसाइट पे सारे। बच्चे टाइम टू टाइम सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे एंड इस वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी PDF नोट्स का, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, राइट। इसमें और इंटरनेट वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहाँ से अपने PDF नोट्स ले सकते हो। ओके ओके।